Good morning, students. Now we'll see the economic importance of gymnosperms. So here you can see that it is of commercial importance, and also it provides the timber, softwood for construction, packing, plywood, board, paper industry, then turpentine, resin, tannins, etc. Then other products are also obtained from these conifers. Then pine seeds, these are also roasted and can be eaten. Then resin. This is a resin which we get from a pine tree. It is also called amber. It is of great commercial value and is also used in jewelries. Okay. Now the leaves of Taxa baccata is used in asthma, bronchitis, epilepsy, and all this it is used. Then plant is a source of anti-cancer drug also. Then ये इफेड्रीन होती है, ये जो इफेड्रेसा से मिलती है, it is also used for cold, hay fever, asthma and respiratory diseases. So this was your economic importance. Please go through this. Then classification of gymnosperms is not in your syllabus, but you are having this. This is the pinus external structure. Here you can see this is the female cone. These are dwarf shoots. You can see the lateral buds. This is the male cone. So these are some of the needle foliages, because we'll discuss this. That is why I'm telling you. These are the terminal buds. Okay. Now life cycle of a pinus. In this they have just told that ये आपका जो pinus we have taken as an example. It is representing about 105 species. And it is distributed mostly in the southern hemisphere. Southern hemisphere मतलब जो हमारी साइड होता है ना, ये वाला नॉर्थ इंडिया जो है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोनिफर्स जो है, you can get these. Okay, so northern temperate and subalpine regions. Now दूसरा है आपका saprophytic plant body. In this they have described this plant. Okay, ये कैसा कैसा होता है. So in this pinus is an evergreen tree. When it is young, the plant gives a typical pyramidical appearance. Pyramid मतलब pyramid जैसा होता है ना, उसके जैसा appearance इसका दिखाई देता है. Then its body is differentiated into root, stem and leaves. ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था. और इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, जिसमें क्या होती है, मेन रूट प्रेजेंट होती है और उसके चारों तरफ और छोटी छोटी रूट्स होती हैं. देन इसके साथ इसके हेयर्स में फंगल हाइफी जो होता है उसका कोलैबोरेशन है, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं. ठीक है, पाइनस के उसमें. The stem is cylindrical, erect, woody, branched, and these branches are monopodial and develop spirally in the axis of the scaly leaves present on the stem. है ना, इसकी branches जो होती हैं काफी woody होती हैं, और जो main trunk होता है इसमें, उसमें काफी सारे scales होते हैं, तो वहीं से ये branches जो होती हैं निकलती रहती हैं. Now these are monopodial and develop, ये हो गया है. Such a branching gives a conical appearance to the plant. In pinus the branches are dimorphic. अभी इसकी वजह से ये आपका conical shaped होता है, लेकिन जो आपकी शूट्स होती हैं इसमें ना दो टाइप की हैं. दो टाइप के मतलब डाइमॉर्फिक का मतलब दो टाइप की इसमें ब्रांचेस आती हैं. वन इज द लॉन्ग एंड अदर वन इज द ड्वार्फ वन. ओके, लॉन्ग ब्रांचेस जो हैं दे आर हैविंग अनलिमिटेड ग्रोथ. अनलिमिटेड मतलब ये ग्रो होती रहती हैं. दूसरी ड्वार्फ है, और द ब्रांचेस विच हैव अ लिमिटेड ग्रोथ. तो लॉन्ग शूट दे आर प्रेजेंट इन द मेन ट्रंक and in the apical bud of these branches grow indefinitely. Hence these shoots are called of unlimited growth. तो आपके लॉन्ग शूट्स जो है ना, जो ये मेन ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं, जो मेन वाला होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं और ग्रो होते रहते हैं. मतलब उसमें से नए शूट्स निकलते रहेंगे एंड दे कंटिन्यू ग्रोइंग. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. नाउ दीज ब्रांचेस डेवलप इन द एक्सल ऑफ द स्केल लीव्स एंड बियर ओनली द स्केल लीव्स. है ना, तो इसमें सिर्फ स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं. देन ऑन द अदर हैंड जो आपके ड्वार्फ शूट्स हैं, दे डू नॉट हैव द एपिकल बड एंड हेंस शो. इसमें कोई भी एपिकल बड नहीं होती है, और एपिकल बड होगी तो ही इसके आगे ग्रोथ होगी. है ना, तो इसमें एपिकल बड होती ही नहीं है, तो ये आगे ग्रो नहीं होता है. एंड now these shoots develop a axial scale leaves and bear both the scale and foliage leaves. तो इसमें आपकी क्या होती है कि इसमें स्केल लीव्स साथ में क्या होती है, स्केल के साथ साथ फॉलिएज लीव्स जो होती हैं, जो एक बंच होता है लीव्स का, these are present. Now the scales leaves are dark brown, membranous, thin and small, and their main function is protection of a young bud. तो एक्चुअली ये जो आपकी दूसरी वाली ड्वार्फ शूट है ना, ड्वार्फ शूट में मोस्टली स्केल्स हैं जो क्या करेंगी, बर्ड्स को, जो नई बर्ड आ रही है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये. तो इसलिए इसमें क्या होती है, ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है. ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड द फॉलिएज लीव्स आर ग्रीन एंड
escular and needle like, reducing the surface area. This again I have told you कि पाइन में आपने देखा होगा इस तरीके की ऐसी वाली लीव्स होती हैं नीडल टाइप की, जिससे कि रेस्पिरेशन जो है और लॉस ऑफ वाटर कम हो. द ड्वार्फ शूट इज अ ग्रुप ऑफ फॉलिएज लीफ नीडल नोन एज अ फॉलियर स्पर. ठीक है, इसको ये जो ग्रुप होता है ड्वार्फ लीव्स का, जो ड्वार्फ आपकी छोटे वाले ब्रांचेस हैं उनका, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका ग्रुप है देखिए, और इससे आगे जो है ये लीव्स निकल रही हैं. ठीक है, तो ये आपकी ड्वार्फ शूट है. तो ड्वार्फ शूट में से फॉलिएज लीव्स जो है आगे जो गुच्छा है वो तब निकल रहा है. ठीक है, तो मतलब आपकी जो ड्वार्फ शूट है ना, ये पूरा स्केल है तो ये ब्रांच, लेकिन ये स्केल है और ये लंबा नहीं होता. जो आपकी आगे वाली ये नीडल टाइप की लीव्स है, ओनली दीज आर ग्रोइंग. ओके, एंड दीज आर ग्रीन इन कलर, और ये आपका ब्राउन ग्रे कलर का स्केल टाइप का होता है. तो ये वाली जो है ये अनलिमिटेड ग्रोथ की है और ये आपकी शॉर्ट ग्रोथ की है. Now the needle are photosynthetic, they remain persistent for several years. और ये आपकी जो नीडल टाइप की लीव्स हैं ये कैसी हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक मटेरियल है ही क्लोरोफिल, तो ये आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं. देन इसमें क्यूटिकल है, श्रंकन स्टोमेटा है. ये सारे फीचर्स होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के. तो ये जीरोफिटिक अडेप्टेशन इन प्लांट्स में शुरू में रही होगी जब ये पहले ग्रो हुए होंगे, तो इसलिए ये इस टाइप के हैं. इसमें नीडल टाइप की बॉडी है. चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा. दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल. नाउ लाइफ साइकिल इज देयर. इन द लाइफ साइकिल अगेन दे हैव टोल्ड दैट दे आर हैविंग, there are two male cones. Okay, sorry, there are two type of cones. One is the male and other is the female. The plant body of a saprophyte bears two kind of cones. Okay, male and this is on the separate branches. तो आपका जो मेल कोन होता है इसका डायमीटर दिया है इन्होंने 0.5 सेंटीमीटर, and it forms a cluster of apical buds on the base of a new shoot. Now they develop on the axis of the scale leaves in the dwarf shoot. जो dwarf shoot होती है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे dwarf shoot में ये आपका क्या है, दिस इज द मेल कोन है ना. तो जहां पे dwarf shoot है उसी के बाद ये देखिए ये आपका मेल कोन जो है ये ग्रो होना शुरू हो गया है. Now female cone rises on the arise in the axil of a scale leaves at the tip of a new shoot. दूसरा आपको दिख रहा होगा फीमेल कोन जो है. फीमेल कोन क्या करता है कि जो आपका ये पूरा है ना इसके टिप पे ग्रो करेगा. ग्रो वो भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे जो ड्वार्फ शूट है यहाँ से डायरेक्टली ग्रो होके आप देखिए ऊपर उसमें बंचेस टाइप के दिख रहे हैं. लेकिन आपका जो फीमेल कोन है ये ग्रो होने के बाद यहाँ देखिए इसमें कोई बंचेस नहीं है. दिस इज अ मीन्स फ्रॉम द मेन ब्रांच जो होती है उसमें से ये निकला हुआ है. नाउ द अच्छा, इसमें फीमेल कोन में वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी सीन कि फीमेल कोन आपका 3 इयर्स में डेवलप होता है. फर्स्ट द ग्रीन, इट इज ग्रीन व्हेन यंग, ये ग्रीन होता है, फिर बिकम्स रेडिश ब्राउन इन द सेकेंड ईयर. पहले वाले साल में तो ये सिर्फ यंग ग्रो हो रहा है, फिर दूसरे साल में ये रेडिश ब्राउन होता है. एंड द थर्ड ईयर कोन बिकम्स लूज एंड द स्पोरोफिल्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द कोन एक्सिस. और थर्ड ईयर में जो इसके पूरे कोन्स के वो एक वुडी शेल होता है ना, वो पूरा अलग अलग होना शुरू हो जाता है, सो दैट जो कोन होता है ये साइज भी थोड़ा बड़ा अटेन कर लेता है. और इसके जो बाहर से कवर में कुछ these woody structures are there, तो these get separated. Okay, तो ये कोन में अलग हो जाता है क्योंकि कोन लंबा हो जाता है, और फिर इसके जो सीड्स होते हैं they also try to come out. Now both the male and the female cone consist of a spirally arranged closely packed sporophylls around its axis. ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं कि आपके स्पोरोफिल्स जो होते हैं ना, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर देयर. ओके, अब देखिए माइक्रोस्पोरोफिल है, फिर आपका मेगास्पोरोफिल है. माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, दिस इज द मेल पार्ट है ना. इसका डिसेंस क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स है. एक्चुअली पोलन ग्रेन मैं आपको पीछे डायग्राम में दिखाती हूँ. यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, एक जो आपका माइक्रोस्पोर बनेगा ये काफी बड़ा होगा. इसमें देखिए रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन से ये बहुत सारे बन जाएंगे. तो ये इतना पाउडर टाइप का बन जाता है ना पोलन ग्रेन्स, तो ये विंड से ही डिस्पर्स होते हैं. और आपने कभी देखा होगा क्योंकि श्रीनगर के जंगलों के पास यू कैन सी देयर आर सो मेनी पाइन फॉरेस्ट है ना, तो आपने देखा होगा कि फरवरी मार्च के महीने में यू आर हैविंग सम येलो कलर्ड पाउडर एट योर होम्स है ना. तो ये येलो कलर्ड पाउडर जो होता है ये एक्चुअली पोलन्स होते हैं, जो कि पाइन के पोलन्स होते हैं.
Now these pollens are called shower of sulfur. Shower of sulfur मतलब पूरा हर जगह येलो हो जाता है ना, तो इसलिए इसको शावर ऑफ सल्फर कहा जाता है, लाइक द सल्फर पाउडर है ना, तो उस तरीके का शावर होता है। तो इसको माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपके इंडिया में जो होते हैं ना, डीजन्स मोस्टली कब होता है, जब वार्म ड्राई एनवायरनमेंट होता है। तो वार्म ड्राई हमारे यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल तक समझ लीजिए होता है, तो उस टाइम में आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे पोलन्स है ना, उड़ते हुए। Then next is your megasporophyll. It is a compound structure consisting of 2 type of scales. इसमें आपका एक ब्रैक्ट स्केल है, दूसरा ओविलिफेरस स्केल है। Now ब्रैक्ट स्केल are a small membranous structure which are directly attached to the cone axis just below the oviviparous scale. तो ये आपके जो ब्रैक्ट स्केल्स हैं, ये ओविलिफेरस के ठीक नीचे जो होते हैं ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ओविलिफेरस मतलब आप इसको सीड समझ लीजिए, वेयर एज द ओविलिफेरस स्केल्स आर थिक, लार्ज, वुडी, ब्राउनिश एंड रफली ट्रायंगुलर। ये जो वुड वाला पार्ट है ना, मतलब इसको आप ये समझ लीजिए, ये है ना, ये वाला पार्ट जो है वुडी। तो दीज आर योर ओविलिफेरस स्केल्स। नाउ द 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ ओविलिफेरस स्केल इन द डॉर्सल सरफेस। ये इसका जो नीचे अगर आप इसको खोलेंगे ना, तो इसके अंदर आपको 2 सीड्स मिलेंगे। नाउ द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिंग। ऑर्थोट्रोपस मैंने आपको बता दिया था, थोड़े से बेंड रहते हैं, और सिंगल होता है। द मेगास्पोर मदर सेल इन the ovule divides by the reduction division. Again there will be a reduction division to produce 4 megaspores and they will be arranged in a linear tetrad. Okay, ये megaspores जो हैं towards the micropylar they degenerate and remaining one is functional. सिर्फ एक functional रहता है, 4 होते हैं grow, लेकिन 3 जो होते हैं वो degenerate हो जाते हैं and only one is remaining. So in this it's very easy, you can see the cycle from A देखिए, ये बी डायग्राम है। ए में आपका फीमेल कोन है ना, ये फीमेल कोन देखिए धीरे 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 ग्रो हो रहा है। इसमें आपका एग सेल होगा, मेगास्पोर है, ये न्यूसिलस से ये पूरा ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप। ठीक है, फिर आपका ये मेल कोन है, यहाँ देखिए मेल वाला इन्होंने यहां से दिखाया हुआ है आई। ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल, ये आपका देखिए मियोसिस हो गया। यहाँ पे मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड हो गए एन नंबर में, यहाँ पर भी मियोसिस हो गया है, ये एन नंबर में हो गया। तो एग आपका चलता जा रहा है, ये देखिए आगे आ गया, और ये यहाँ से मेल वाला जो है, ये देखिए के के बाद एल आ गया, ये आपके मेल गैमेट्स है। यहाँ पे ये पोलन ट्यूब है, और यहां से ये देखिए, ये दिस वन इज द मेल गैमेट, सिंगल मेल गैमेट, एंड दिस इज द एग सेल। दीज गेट फर्टिलाइज्ड यहाँ पे देखिए एन में, एंड आफ्टर दिस यू आर गेटिंग अ जाइगोट। फिर ये यहां से देखिए 16 सेल स्टेज, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, बड़ा होता गया, और ये पूरा एक सीड ये है, और इसमें विंग्स लगे हुए हैं। विंग्स क्यों लगे हुए हैं? जिससे कि ये विंड से डिस्पर्स हो जाए। फिर ये यहां जाएगा तो ये नए प्लांट में ग्रो करेगा। सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल। ये आपका सिर्फ मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला है, एंड दिस इज ग्रोइंग। ओके, सो in this portion we'll discuss in the next video. For this time I'm just stopping, and this is the life cycle. Okay, thank you.